बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग आज लेक्चर में अपेयर नहीं होंगे तो ये रिकॉर्डिंग उन तक नहीं जाएगी. सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज. Sometimes most of the people do not attend lectures because they believe they will have access for recorded lectures. So in case of my lectures, I will take online attendance. We will generate a Google Classroom link for a Google form. You people will fill out that form by putting your names, roll numbers, and sections, etc. So I will post that link on Google Classroom as well, and that link will be shared in the WhatsApp, and you people can fill that attendance form till 9 p.m. today, inshallah. So 46 out of 46, almost we people have 33 people here. It is fine. So first of all, let me introduce myself. You people are from third year. I know this is the most busiest year of the mechanical. It will be quite difficult for you people to manage all the subjects with the same weightage. I am Muhammad Amar Akram. My bachelor's is from High Tech University Texla. I belong to 13 batch, and my MS is from UUT Texla. I remained a full-time research scholar from 17 to 19 batch, and as well as I remained a research assistant here. My major research area belongs to design of boilers, heat exchangers, condensers. These are the main elements of any power plant. I hope so you people will have studied about the power plants and different thermodynamic cycles like Brayton cycle, Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle. So in addition, you people also have studied about the turbines. Different turbines are also available like steam turbine, gas turbine. और मुझे पता है कि आपको आप ये साइकिल्स इस वक्त भूल चुके होंगे. लेकिन मैकेनिकल वाइब्रेशन इज़ अ टोटली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें जो है आप जो डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं. मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशन इज़ बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल and mathematical modeling. So I hope you people will have a good mathematical knowledge of numerical analysis. You people have studied about derivatives, differentials, integrals, partial derivatives as well. In this course, you people will be able to develop different mathematical equations, different mathematical models that will describe a particular system vibration. Yes. सर ये काइंडली ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, फिर बाद में हम अपलोड करते हैं ना क्लास में. ओके आई विल रिकॉर्ड इट. इसको रिकॉर्ड करके हम जो है वो यूट्यूब पे वो कर देंगे, आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे. नो इशू सर, थैंक यू. ओके. So my major research area is flow induced vibration. Flow induced vibration is actually a secondary branch of mechanical vibration. So mechanical vibration also have a dimensional field of acoustic vibration, structural vibrations, machine condition monitoring, machine fault diagnosis. In addition, people also go for acoustic vibrations as well. So in this domain we are only here for the mechanical vibration. For section A and B, Dr. Luqman will be here, and for section C and D, I will be here. So let me brief in a few lines that whenever there is a flow across pipelines, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीम पाइपलाइंस आप लोगों ने देखी होगी या गैस पाइपलाइंस, जब उसमें फ़्लो हो रहा होता है तो बिकॉज ऑफ अ पार्टिकुलर फ्लो प्रेशर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम प्रेशर डिफरेंस across different boundary conditions of a pipeline. So because of that there will be a vacuum inside or outside of that outside of a tubes, और उनकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो ट्यूब्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं.
तो इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, कंडेंसर्स, बॉयलर्स, ये ट्यूब वाइब्रेट करती हैं, और क्योंकि इनको हमने सपोर्ट किया होता है बॉयलर्स के साथ, या आप ये देख रहे हैं इसमें बॉयलर में ये बैफल प्लेट्स होती हैं, इनको हम सपोर्टिंग प्लेट कहते हैं, और जो मिड में होती हैं ये बैफल प्लेट्स होती हैं। सो जब इनके दरमियान इंटेग्रल मूवमेंट होती है तो इससे यह है कि स्क्रैचेस, क्रैक्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो आपके सिस्टम की जो लाइफ है और एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो वी आर हेयर फॉर आर रिलायबल सॉल्यूशंस ऑफ द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। सो मेरी जो अपनी डिग्री है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन पे मैंने ज़्यादातर काम किया हुआ है, और हीट ट्रांसफ़र पे, HMT जिसे आप लोग जो है हीट एंड मास ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है 1 और 2, मैकेनिकल वाइब्रेशंस में जो आप लोग जो है वो स्टीम टरबाइंस के बारे में देख रहे होंगे, गैस टरबाइंस के बारे में, इनमें जो फॉल्ट डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कंपोनेंट्स होते हैं मशीन्स के आपके पास, लाइकवाइज गियर बॉक्सेस, कपलिंग्स, शाफ्ट्स, गियर बॉक्सेस, बेल्ट एंड पुलीज, एंड काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटरी कंप्रेसर्स, पंप्स, उनमें जो कैविटेशन के फिनोमेनाज होते हैं, एंड बेयरिंग्स में जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं, इन सब को जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं। These are my research publications and you can access them from Google Scholar। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। दिस इज़ गूगल स्कॉलर। आई डो नॉट नो अगर आप लोगों ने ये वेबसाइट कभी यूज़ किया है या नहीं। जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो आपको गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे जस्ट नेम टाइप करें तो आपको हर किस्म की रिसर्च आर्टिकल या रिसर्चर का नेम मिल जाएगा। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल। So these are my research articles. My first research article was published in 2K19 and my latest article is published in 220. And my current embed footer you can see from ResearchGate. This is a website for research students. Almost जितने भी वर्ड साइंटिस्ट हैं आपके पास या रिसर्चर्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोगों को जो है वो गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ माय करंट प्रोफाइल एंड दिस इज़ माय करंट एम्बेड फुटर यू कैन सी। इन एडिशन यू कैन सी hybrid mode of my profile. For example, you can see different mechanical vibration publications as well, and also different thermodynamics or heat transfer publications as well. Actually I am working with different research groups as well, so our current citations are about 28 with I indexes of 2. My research articles are almost published and they are cited by 28 people at national and international level, and most of the articles will lie in a heat transfer domain and mechanical vibration domain, although we are also working on renewable energy. So this is my brief introduction. So that was the link जो अब मैंने आपसे शेयर कर दिया है, गूगल लिंक एंड रिसर्चगेट लिंक. So this was about my personal introduction. Bismillahirrahmanirrahim. So your course code is ME307 mechanical vibrations. This is a brief introduction that I have already presented. This is a famous quote: if you want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. Nikola Tesla का नाम आप लोगों ने सुना होगा. He is responsible for AC and DC supplies
जो अभी आपके पास AC एंड DC करंट आ रहा है, ही इज़ वन ऑफ द रिसर्चर्स जिसने ये इन्वेंट किए थे। और जितने भी इसके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, आप इसकी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर DC करंट एज वेल, जो इसकी मेजर रिसर्च एरिया है इनका। सो ये जो इन्होंने एक कोड दी थी, तो इनको लगा था कि मीन्स के जो फ्रिक्वेंसी की टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इन्होंने यूज़ किया है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी जो नेम प्लेट होती है उनके बाहर वो मेंशन होता है कि यू कैन, फॉर एग्जांपल इसका जो रनिंग करंट है वो इतना होगा, पावर जो है जो इसकी इतनी होगी, और ये इतनी फ्रिक्वेंसी पर रन कर सकती है। फॉर एग्जांपल 40 से 50 हर्ट्ज़ के दरमियान आई थिंक सो कि वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पाकिस्तान में के चलते हैं। आउटसाइड पाकिस्तान 60 हर्ट्ज़ पे भी इक्विपमेंट मूव कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तो 50 भी पूरे नहीं आ रहे आई थिंक। सो जो इक्विपमेंट हम बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो उसका यही होता है कि क्योंकि उनको फ्रिक्वेंसी व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी नंबर, ये आप लोगों ने FSC में स्टडी किया होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो जो भी आपका डिज़ाइन होता है, एक्चुअल और आइडियल डिज़ाइन, वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे किया जाता है। लेकिन जब भी फ्रिक्वेंसी उससे फ्लक्चुएट करती है, और अगर हम उस इक्विपमेंट को उस फ्रिक्वेंसी पे रन नहीं करते जिस पे वो डिज़ाइन किया गया है, तो उसकी जो आइडियल एफिशिएंसी जो अचीव हमने करना होती है, वो ऑटोमेटिकली उससे अफेक्ट हो जाती है। सो वाइब्रेशन वाज आल्सो वन ऑफ हिज, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट कोट अबाउट मैकेनिकल वाइब्रेशन डेट ही कोटेड, बिकॉज न्यूमेरिकल मॉडलिंग इसमें इन्वॉल्व है वाइब्रेशन में, एंड न्यूमेरिकल मॉडलिंग की जो बेसिस हैं वो आपके पास मैथमेटिक्स में है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज वर्ल्ड। इन योर मैकेनिकल वाइब्रेशन कोर्स वी विल स्टडी for different quizzes, assignments, sessionals and end exams, but because of current conditions of COVID-19, I think there will be a midterm and final exam only, there will be no sessionals, but this is my point of view, this is not a final decision from administration। अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है प्रॉपर अक्टूबर में, तो इट इज़ फाइन। अगर अक्टूबर में भी नहीं हो पाती, तो इट में भी पॉसिबल कि आपके मिड टर्म्स और फाइनल ही लें, सेशंस ना हो आपके। एंड इन एडिशन यू सर ये ऑनलाइन होंगे या कैंपस में बुलाकर होंगे? एक्चुअली आजकल एक टीम आई हुई है यूनिवर्सिटी में जो हमारे कोरोना के सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट जो उस पर जनरेट होगी उस पर वो डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को एक्सटेंशन देनी है ऑनलाइन पे या आप लोगों को फिज़िकली बुलाना है। अभी जो 2 सेमेस्टर उन्होंने बुलाए हैं, अभी वो करंट उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस पर जो वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उस पर वो डिसीजन होगा। तो क्विज़ असाइनमेंट आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे जैसे आप लोग अपेयर होते रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, और मिड टर्म और फाइनल एग्जाम। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड दिस इज़ द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई होप सो कि बाकी सब्जेक्ट भी आपने स्टडी किए होंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट आप जब मेरे साथ स्टडी करेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे साथ। इसकी जो बुक है वो आपने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम में? ओके, मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक है, डेट इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस विद एप्लीकेशंस। 5th edition is available and we will upload it soon on Google Classroom. Google Classroom is already created for a section C and D, and almost I will create your quizzes, assignments, in addition to quizzes, assignment, lectures and books, जो टॉपिक्स हैं आपके जो हैं वो मैं वहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, और जो आपका जो भी मटेरियल होगा वो हर वीक के स्टार्ट में वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपका जो करंट कोर्स ऑफ कंटेंट है या लेसन प्लान है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा जो आपका वीक 1 का लेक्चर है वो भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जो हेल्पिंग मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल जो आपके क्लास नोट्स होंगे वो आप लोग खुद जनरेट करेंगे वहाँ पे, और इन एडिशन आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर के लिंक्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग जैसे भी असेस करेंगे उसको। टिल नो आई हैव नॉट अपलोडेड एनी मटेरियल, बट अभी तक मैंने जस्ट वहाँ पे जो है आप लोगों को ऐड किया है, तो आपकी जो बुक्स और मटेरियल हैं वो इंशाल्लाह आज की डेट में वहाँ पे अपलोड कर देंगे। दिस इज़ वन ऑफ द सेकंड बुक, 3rd एडिशन, इंजीनियरिंग वाइब्रेशन बाय डैनियल जे इनमैन की ये बुक है, ये भी वर्ड यूज़ की जाती है, और इसके अलावा जो आप लोग नोट्स यूज़ कर रहे होंगे वो। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स इज़ अबाउट CLOs एंड PLOs. आई विल डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ CLOs एंड PLOs within 2 or 3 minutes.
CLO stands for course learning outcome and PLO stands for program learning outcome. सो आप लोगों ने मिड टर्म में अपेयर होना है, एग्ज़ाम्स में जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उनमें भी होना है, असाइनमेंट्स होने हैं, क्विज़ेस होने हैं। तो जो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपके CLO PLOs जो हैं वो हम डिवाइड कर देते हैं इसी तरह कि फ़लाँ पार्ट में ये CLO या PLO असेस किया जा रहा होगा। Students will develop and analyze the governing equations of different vibration systems depending upon the different conditions and determine the response. This is your PLO3 and CLO4. Okay, so this is one of the most important CLO and PLO. इसको ये न्यूमेरिकल मॉडलिंग भी आप कहते हैं, ऐसे मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कहते हैं। जो डिफरेंट आपके पास मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, आप उनके न्यूमेरिकल मॉडल जनरेट करेंगे। वो जो न्यूमेरिकल मॉडल हैं उनको आप जनरेट करेंगे, उस बेस पे आपकी ग्रेडिंग होगी PLO3 या CLO4 की। वाई CLO एंड PLO बिकॉज योर प्रोग्राम इज़ एक्रीडेटेड विद द वाशिंगटन कोड, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अदरवाइज ये CLO PLO वाला हिसाब आपके साथ ना होता। स्टूडेंट्स विल एनालाइज मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर कैरेक्टरिस्टिक parameters. So your PLO3 and CLO4 will be assessed here. So we will study different degree of freedom systems. For example, single degree of freedom system, 2 degree of freedom system as well, multiple degree of freedom systems as well. And you will develop numerical models and mathematical equations for these systems as well. So this is course outline. First of all, I will go for introduction to mechanical vibrations. What is mechanical vibration? Why are you here in mechanical engineering to study the vibrations? Vibrations की जो definition आपको FSC level पे बताई जाती होगी, it is a dynamic movement of any body. Dynamic movement of body because of that principle. There will be a to and fro motion of machine particles about mean position. So they will generate a kinetic energy and different kinds of energy that will add up with each other and generate a big picture. So उसमें ये होता है कि जैसे ही आपके different जो मशीन के पार्ट्स हैं वो different frequencies पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशंस जो हैं वो मोशन वेक्टर्स हैं वो ऐड अप हो जाते हैं और सम टाइम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज पे सिस्टम आपका रेजोनेट कर जाता है और इवन एक्सप्लोड भी कर जाता है। सो यू आर हेयर टू स्टडी द मैकेनिकल वाइब्रेशन। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द बेसिक डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। जितने भी मशीन प्लांट्स आपके पास हैं उनकी जो बेसिक डायनेमिक्स है, अभी तक आप लोगों ने स्टैटिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया होगा लेकिन डायनेमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी किया होगा कि व्हाट इज़ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन को डायनेमिक फॉर्म में आपने अभी तक स्टडी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल स्टीम टरबाइन तो है, इट इज़ फाइन, बट बिकॉज ऑफ द लोडिंग अनलोडिंग करंट फ्लक्चुएशंस एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ आवर लाइफ एंड डिफरेंट ISO स्टैंडर्ड्स, योर reliability of machine is always decreasing. So how you have to maintain the life of a machine to increase reliability of a machine and for its accurate and precise measurement of the results. सो मैकेनिकल वाइब्रेशन का नॉलेज होने के लिए होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपके प्लांट की जो लाइफ है, इसकी रेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, और अगर वो इंक्रीज़ होगी तो इन रिटर्न क्या होगा, सडन जो शट डाउन हो जाता है किसी भी मशीन का या जो प्लांट शट डाउन होता है उसे वो अवॉइड किया जाएगा, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। फॉर्मुलेटिंग ऑफ गवर्निंग इक्वेशंस विल बी डेवलप्ड फॉर 1D, 2D and 3D systems as well. We will go for mass spring systems, simple pendulums and torsional equations as well. टॉर्शनल वाइब्रेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वो व्हील शाफ्ट की है, जिसमें जो दोनों व्हील्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट ग्राउंड, तो आप देखते हैं उसमें टॉर्शनल वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन की जो मोशन है इट इज़ काइंड ऑफ बिल्डिंग वाइब्रेशन। बिल्डिंग वाइब्रेशन में आप देख रहे हैं आपके वन एंड से जो है वो स्ट्रिंग को अटैच कर दिया हमने और अदर एंड से हमने बिल्डिंग को हैंग कर दिया है। कॉन्टिन्यूसली जो है हमने उसको जो है वो एयर फ्लो में जो हमने सस्टेन किया हुआ है।
तो जैसे ही एयर फ्लो होता है बिल्डिंग के अक्रॉस तो उससे बिल्डिंग वाइब्रेट करती है। तो ये एक सिंपल पेंडुलम की मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड की है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है वो आप जो है वो इस रूम में ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई भी रूम है तो उसका जो पूरे का पूरा जो मैस होगा, जो उसमें जो आप लोगों ने जो डिफरेंट जो आपके पास जो वॉल्स हैं, तो हर वॉल को आप जो है ना वो एक मैस कंसिडर कर लें, और ये सारे के सारे जो हैं वो ग्राउंड के साथ अटैच हैं, तो वो भी एक इटसेल्फ एक मैस है। तो जब हम सिस्टम को मैकेनिकल में सॉल्व करते हैं तो हम उसका एक इक्विवेलेंट मैस निकालते हैं। इक्विवेलेंट मैस निकालने के बाद हम वॉल को कंसिडर करते हैं कि ये स्प्रिंग है, तो जो उसके ऊपर जो रूफ़ है वो एक मैस है। तो हम इससे ये स्टडी कर सकते हैं, ये एक एजम्पशन है। कीप इन माइंड ऑल मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल मॉडल्स आर डेवलप्ड ऑन द एजम्पशंस। सो इसमें जो एजम्पशन हम करेंगे उस बेस पे न्यूमेरिकल मॉडल बनाया जाएगा, वो उतना एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। तो इस बेस पे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये इतना सिस्टम में इतना आपका बिल्डिंग वाइब्रेट करेगा। फ्री वाइब्रेशंस आर काइंड ऑफ वाइब्रेशन फॉर आर स्टैटिक स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है और अभी एयर का जो फ्लो है वो जितने मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन अगर ये फ्री वाइब्रेशन आप समझिए इसमें हो रही हैं अभी, जो बिल्कुल माइन्यूट माइक्रोन्स में हो रही होंगी और दे आर नॉट विजिबल। और अगर आप इनको विजिबल बनाना है तो आपको एयर फ्लो इसके अक्रॉस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल विंड स्टॉर्म्स जब आते हैं अक्सर उस केस में, या अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो फोर्स वाइब्रेशंस हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गया आपके सिस्टम पे कि वो वाइब्रेट करे, सो दिस विल बी फोर्स वाइब्रेशन। लेकिन अभी जो बिल्डिंग है उसमें फ्री वाइब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन वो इतनी माइन्यूट है माइक्रोन्स में कि आप उनको नेट आई से देख नहीं सकते। डैम्पिंग एलिमेंट इज़ प्रोवाइड फॉर द मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स to dissipate energy, because you people know because of vibrations of a system energy will be stored within the system। so वो एनर्जी जो है वो सिस्टम डेसिपेट करता रहता है जैसे जैसे वो वाइब्रेट करता है। बट क्यों ना हम सिस्टम में कोई ऐसे एलिमेंट इंस्टॉल करें कि जैसे सिस्टम जो है वो जल्दी रेस्ट पे आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है बिल्डिंग क्यों ना अर्थक्वेक के बाद फ़ौरन ही रेस्ट में आ जाए इंस्टेड ऑफ कोलैप्स के वो कोलैप्स कर जाए। इसी तरह फॉर एग्जांपल you people have traveled across different vehicles, जो आपके पास ट्रांसमिशन व्हीकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में देखें तो आपके पास जो ऑटो बाइक है, बाइक पे आपने कभी अगर ट्रैवलिंग की हो तो आप उसके जो शॉक ऑब्जर्वर्स हैं उनको रिमूव कर दें और फिर उस पर ट्रैवल करके दिखाएं मुझे। जब भी जंप आएगा तो एक सडन जो है वो आप पे इनर्शियल फोर्स अप्लाई होगी, और आई होप सो कि आप 2 से 3 मिनट तक ये ट्रैवल कर सकेंगे। सो अगर आप शॉक ऑब्जर्वर निकाल देते हैं, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर अगर आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो डैट विल बी अ काइंड ऑफ डैम्पर, आपने डैम्पर उसमें लगा दिया है। शॉक ऑब्जर्वर का कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो स्टिफनेस और डैम्पिंग एलिमेंट पर डिज़ाइन किया गया उससे। जो स्प्रिंग होता है उसमें वो स्टिफनेस एलिमेंट होता है, और जो उसमें पिस्टन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो डैम्पिंग एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ये सस्पेंशन सिस्टम में इसकी टैंक्स में भी एप्लीकेशन है, इसकी 4 व्हील्स में भी एप्लीकेशन है, इसकी बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन में भी एप्लीकेशन है। नॉट ओनली दिस, ट्रांसमिशन लाइंस आपने देखी होंगी इलेक्ट्रिसिटी की, जो बड़े बड़े आपके पास टावर्स होते हैं उसमें जो डेल्टा और स्टार डिस्ट्रीब्यूशन आपने कभी देखी होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट जो डैम्पर्स हैं वो इंस्टॉल हुए देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर। वो भी एनर्जी डेसिपेटर्स होते हैं, एनर्जी डेसिपेट कर होते हैं। बिकॉज मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि वाइब्रेशंस को हम फ्री वाइब्रेशन में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन तो एक प्राइमरी ब्रांच है, लेकिन इसमें अगर जो वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स में हो रही होती है, फॉर एग्जांपल जो वाइब्रेशन आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में हो रही है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन की टर्म में गैल्पिंग जो है ये आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में जो वाइब्रेशन हो रही होती है उसकी वजह से जो स्टॉर्म्स आते हैं तो उससे जो पूरा का पूरा आपका वो वाइब्रेट कर होता है स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन लाइंस का, ये गैल्पिंग का फिनोमेना है। फाइन। अब फ्लटरिंग का फिनोमेना आप लोगों को मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एरोप्लेन पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप लोग जो है वो 3000 फीट पे अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो सम टाइम आपने देखा होगा कि जो लोग जो है वो बैक सीट पे बैठे होते हैं उनको स्पेशली वाइब्रेशंस फील होती हैं जो बैक सीट पे होते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है कि जो आपका विंग डिज़ाइन किया जाता है वो कैंटिलीवर बीम कंसिडर किया जाता है एरोप्लेन का जो होता है, तो उसको एक प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस पे डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें जो वाइब्रेशंस इंड्यूस होती हैं एट सडन प्रेशर और सडन चेंज ऑफ प्रेशर, तो वो उसको
सो उसमें जो है वो टर्बुलेंस का फिनोमेना जनरेट होता है, और टर्बुलेंस का फिनोमेना हमेशा ट्रैवल करता है जो बैकवर्ड एरिया होता है। इसी तरह जो आपकी जो बैक सीट होती हैं कार की, या जो डेवो बसेस होती हैं, जो बैक सीट्स होती हैं, अक्सर कंप्लेन आती हैं कि वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। तो यही रीज़न होती है कि वहाँ पे डैम्पिंग एलिमेंट इतना ज़्यादा एफिशिएंट हम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। लेकिन फ्रंट जो पोजीशन होती है या मीडियम होती है, वहाँ पे डैम्पिंग एलिमेंट अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ होता है, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन ज़्यादातर होती हैं वो डेसिपेट हो जाती हैं। तो बात हो रही थी एरोप्लेन की विंग की, तो उसमें जो वाइब्रेशंस होंगी उसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं फ्लटरिंग फिनोमेना। In case of transmission lines, it is a galvanic phenomena. In case of building vibration or cantilever beam of aeroplane, it is a fluttering phenomena. So, in case of sound vibrations, aeroplane जब मूव करते हैं, आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जब एरोप्लेन मूव करते हैं, आप लोगों ने हाइपरसोनिक सुपरसोनिक रीजन देखे होंगे, जब वो उसको क्रॉस करते हैं तो सडन एक फ्रिक्वेंसी चेंज आता है और एक साउंड आपको सुनाई देती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एरोप्लेन आपको अप्रोच कर रहा है और पहले ही साउंड आ जाती है आपको, और साउंड टाइम ऐसे होता है कि वो अप्रोच करके जा चुका है होता है और बाद में उसकी साउंड आ रही होती है। सब सोनिक और सुपर सोनिक रीजन की बात कर रहा हूँ। तो आई होप सो एफएससी में आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा। सो इन फिनोमेना को स्टडी करने के लिए अकॉस्टिक वाइब्रेशन से हेल्प ली जाती है। हाउ इट इज़ हेल्पफुल? इट इज़ हेल्पफुल इन डिफेंस। आपके जितना भी रेडार ऑपरेशन आजकल जो हो रहा है, जिसमें वो देखते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ से अप्रोच कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, उसमें उसकी मूवमेंट कैसी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये इसका अकॉस्टिक वाइब्रेशन में आता है। इसी तरह रोटरी मशीन और कंडीशन मॉनिटरिंग के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगा। फोर्स वाइब्रेशन पे आते हैं। फ्री वाइब्रेशन स्टैटिक स्ट्रक्चर में जो वाइब्रेशन हो रही थी वो फ्री वाइब्रेशन है, और फोर्स वाइब्रेशन ऐसी है कि स्ट्रक्चर आपका मूव कर रहा है। जैसे एक डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, आप जो है बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन होंगी वो फोर्स वाइब्रेशन होगी। रोटेशनल अनबैलेंस। रोटेशनल अनबैलेंस की जो बेस्ट एग्जांपल जो मैं आप लोगों को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, इट इज़ इन केस ऑफ अ मशीन टर्बाइंस। मशीन टर्बाइंस में आप लोगों ने देखा होगा, मैं वैसे मशीन टर्बाइंस की बात नहीं करता, अभी हम सिंपल बात करते हैं किसी शाफ्ट की। शाफ्ट को भी हम लीव कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं फ़ैन की। आप लोगों के पास जो रूम फैंस हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोगों ने गौर किया कि इसमें जो है वो जो डिफरेंट विंग्स हैं, सॉरी इसके जो क्या नाम है, फ़ैन के जो डिफरेंट विंग्स हैं, ये एक प्रॉपर एंगल पे डिज़ाइन किए गए हैं। 360 डिवाइड बाई 3, तो जो नंबर आपके पास आ रहा है, तो ये उस पर डिज़ाइन किए गए हैं। क्या रीज़न है इसकी? हमने इक्विवेलेंट स्पेस क्यों रखी है इनमें? हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकते थे। एनीवन फ्रॉम योर साइड, कोई आंसर कर सकता है आप में से? ऑनलाइन आके आंसर करें प्लीज़। हेलो सर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करने के लिए। इट कैन बी वन काइंड ऑफ आंसर। एनीवन एल्स? अच्छा, काइंडली मुझे आप लोग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि यू पीपल कैन हियर मी, आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? वॉइस क्वालिटी कैसी है मेरी आप लोगों तक जो कन्वे हो रही है? सर आवाज़ थोड़ी रुक रुक के आ रही है। ओके, ये बिलाल का इशू है। एनीवन एल्स? हेलो सर सही आ रही है आवाज़। ओके फाइन। एक्चुअली मेरे पास जो है वो 8 MB का कनेक्शन है, तो जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस जो है वो वीक है, आई विल रिक्वेस्ट कि वो अपनी एक्सेस चेंज कर लें। आई थिंक फ्रॉम माई साइड माई लेक्चर विल आल्सो भी अपलोडेड। अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगी। लेकिन गूगल मीट पे भी एक लिमिटेशन है, 100 पीपल कैन ओनली ज्वाइन, तो 37 ने किया है, तो मेरे ख्याल में ये ऑनलाइन इशू है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बात अनबैलेंसिंग की हो रही थी, तो ये जो प्रॉपर जो 3 विंग्स इसके डिज़ाइन किए गए हैं प्रॉपर एंगल पे, ये एक्चुअली इसलिए किए गए हैं कि ये प्रॉपर बैलेंसिंग परफॉर्म करनी होती है। आप लोगों में से अगर किसी ने कभी कार ड्राइव किया है या बाइक ड्राइव किया है, तो आप लोग जो है व्हील की बैलेंसिंग करवाते होंगे। तो व्हील की बैलेंसिंग अगर आप लोग ना करवाएं
तो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट? काइंडली कोई भी आप में से आके बता दें जो बाइक ड्राइव कर सकते हैं या कार ड्राइव कर सकते हैं। सर गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, जी जी बिल्कुल। अलाइनमेंट अलाइनमेंट नहीं होगी, इसकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट नहीं बेकार हो होगी, जाएगी। गाड़ी वाइब्रेट करेगी, इसके अलावा और भी फ्लक्चुएशंस उसमें आएंगी। सो वेरी गुड, यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि जब एक फ़ैन की जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। अब देखें ना, इसमें आप 360 डिवाइड बाई जब 3 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है, तो उस पर ये इन्होंने विंग्स लगाए हैं। अगर आप ये विंग एक विंग उतार के दूसरे के करीब लगा दें या पहले के करीब लगा दें, इसकी अनबैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका एक्सेप्शनली वाइब्रेट करेगा और अनस्टेबल हो जाएगा। फाइन। सो इसी तरह इससे जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं और किस तरह से हम इसकी इंडिकेशन करते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में अनबैलेंसिंग फिनोमेना हो रहा है या नहीं हो रहा। और एंड इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज फ़ैन के केस में तो ठीक है, आप एक विंग उतार दें फिर भी चल जाएगा, दूसरा उतार दें तो फिर फ़ैन हो सकता है सीलिंग से नीचे आ जाए। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स के विंग्स आप देख लें, उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं हम स्टीम टरबाइंस की। स्टीम टरबाइंस के जो आपके पास होते हैं शाफ्ट्स, इसमें जो ब्लेड्स होते हैं टरबाइन ब्लेड्स, ये भी इक्विवेलेंट जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन इनकी की जाती है और इक्विवेलेंट इनकी प्लेसमेंट की जाती है। विद टाइम ये होता है कि इसमें जो कोरोजन का फिनोमेना होता है, तो जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें डिक्रीज़ होती रहती है। इवन सम टाइम सडन लोडिंग की वजह से जो उसका एक आध विंग है वो ब्रेक कर जाता है। तो होता यह है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है वो अनबैलेंस आ जाएगा और जो शाफ्ट की मूवमेंट है वहाँ पे वो सारी की सारी जो है वो कोहेरेंस जनरेट करेगी, वाइब्रेशन जनरेट करेगी। तो बिकॉज ऑफ अ इलेक्ट्रिकल मूवमेंट ऑफ अ शाफ्ट देयर विल बी अ सेक्शनल वाइब्रेशन within the steam turbine shaft, and because of the hauling effect आपके जो ब्लेड्स हैं वो केसिंग से भी टकरा सकते हैं और इवन जो आपकी शाफ्ट है उसकी इसेंट्रिसिटी भी उड़ सकती है और आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। आपका गियर बॉक्स सडनली ख़राब हो सकता है, $1 million का आपका नुकसान हो सकता है। नंबर ऑफ अदर ऑपरेशंस, बट मैकेनिकल वाइब्रेशन को स्टडी करने के बाद यू पीपल विल बी एबल टू डिसाइड how you can balance different wheels or shafts. You people will be able to understand how we can diagnose unbalancing within the machine component. So this is the branch of condition monitoring. मैं खुद जो है वो 1 year प्लस जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहा हूँ। डिफरेंट जो आपके प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, OGDCL है, पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, आपके सतारा केमिकल्स है, फैसलाबाद में आए आपके पास टेक्सटाइल मिल्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना। यहाँ पे हम पावर प्लांट का एनालिसिस परफॉर्म करते होते थे और ऑनलाइन हम जो है ना उसकी वो मॉनिटरिंग करते थे। मींस प्लांट आपको ऑपरेट कर रहा होगा, हम उसको शट डाउन नहीं करवाते। ऑपरेशनल प्लांट की जो वाइब्रेशंस हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसका सॉफ्टवेयर एनालिसिस परफॉर्म करके उसकी फॉल्ट डायग्नोसिस करते हैं, इस प्लांट में क्या फॉल्ट आ रहा है। तो इवन यू कैन स्पेसिफाई एट what part of a particular plant and what particular component of a plant, and even specifically what part of that component is failing. So इतनी एडवांस और सैचुरेटेड फील्ड है कि इसमें मीन्स के आप लोग जो है जस्ट वाइब्रेशंस को कोड करके आप फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल दूँ तो आप जब अनपीसफुल फील करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड टेस्ट भी करता है, टेम्परेचर चेक करता है आपका, और भी डिफरेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करता है, तो फाइनल रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि वो आते साथ आपका ब्लड टेस्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे सर मुझे बुखार है तो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा, फिर वो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट चेक करेगा, फिर भी अगर उसे समझ ना आए तो फिर वो आपका यूरिन टेस्ट कर लेगा या ब्लड टेस्ट कर लेगा। उधर से वो आपके जो डिफरेंट HP लेवल्स हैं उससे वो अंदाज़ा लगा लेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं आप। और इसके अलावा जो है फर्दर अगर आपको हार्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो आपका ECG भी कर लेगा, तो उससे हार्ट बीट से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका हार्ट बीट का क्या इशू आ रहा है या जो भी है। खुदा ना खास्ता ये चीज़ें जो होती हैं, हार्ट टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हार्ट टेस्ट एक पर्टिकुलर फॉल्ट को डायग्नोज कर होता है कि आप में जो फॉल्ट है वो क्या है। इसी तरह जो मशीन फॉल्ट्स हैं, मशीन फॉल्ट्स में भी हम डिफरेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्ट से ये होता है कि हमें जो इनिशियल लुब्रिकेशन के इश्यूज़ होते हैं वो पता चल जाते हैं। इसके अलावा अकॉस्टिक वाइब्रेशंस में जो लीकेज के इश्यूज़ होते हैं, सील्स जो है आपके वो लीक कर जाती हैं आपके स्ट्रीम पाइप्स की या गैस पाइप्स की, या इवन जहाँ भी फ्लो हो रहा होता है तो वो जो सील्स हैं वो लीकेज कर जाती हैं, तो उनकी भी इनिशियल जो
रिजेम्बलेंस है वो हम उसे कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लड टेस्ट। तो इससे हमें इंटरनल जो उसमें कोरोजन हो रही है या उसमें रबिंग हो रही है, तो जो मटेरियल उसमें आ रहा होगा ऑयल में, हम उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसका फिर मैचअप करेंगे कि कौन से कंपोनेंट के ये पार्टिकल ब्रेकअप हुए हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट जनरेट हुआ है। इसके अलावा हम मशीन वाइब्रेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ द मशीन फॉल्ट डायग्नोसिस। ऑल अदर रिमेनिंग फील्ड्स आर फॉर पार्टिकुलर फॉल्ट्स। लेकिन ये एक ऐसी जनरल फील्ड है जिसमें आप मशीन्स की इंडक्शन मोटर्स में आए, आपके पास करंट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, आपके पास जो है वो जो कॉइलिंग है वो ख़राब हो गया है, आपके पास जो है वो इसेंट्रिसिटी का इशू आ रहा है, आपके जो है वो रोटर और स्टेटर के दरमियान इसेंट्रिसिटी का इशू आ रहा है, आपका मैग्नेट जो वीक हो गए हैं, नॉर्थ साउथ पोल वीक हो गए हैं, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी वाइंडिंग की, वो पता लगा सकते हैं, वाइंडिंग इशूज़ पता लगा सकते हैं। बेरिंग पे सपोर्ट किया होता है उनको तो शाफ्ट को, तो उसका पता लगा सकते हैं। बेरिंग में कौन सा फॉल्ट आ रहा है पर्टिकुलर, इसका पता लगा सकते हैं। शाफ्ट मिसअलाइनमेंट, कपलिंग्स फॉल्ट, सीलिंग फॉल्ट्स विद इन कंप्रेसर्स, you people can identify cavitation phenomena, surge phenomena within gear posts. You people can identify eccentricity fault, gear cracks, gear meshing phenomena, and hundred of machine faults you can diagnose with the help of mechanical vibration. और इस पर पूरा का पूरा एक कोर्स करवाया जाता है जिसका नाम है मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग या मशीन फॉल्ट डायग्नोसिस। इस पे जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे कोर्सेज होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। कैट 1 जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर रेडी कंसिडर किया जाता है। अगर आप कैट 2 करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख आपकी फ़ीस होगी। और कैट 3 जो है वो आपका 3 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ 4.5 लाख प्लस का कोर्स है। और कैट 4 मीन्स ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। वो किसी भी स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, आईसी इंजन, किसी भी मशीन कंपोनेंट का फॉल्ट डायग्नोस कर सकता है। कैट 4 होता है वो। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, दीज थिंग्स बिलोंग टू योर कोर्स तो आपको स्टडी कर लेंगे। आपको मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करवा लूँगा, शाफ्ट का डिज़ाइन भी करवा दूँगा, 1D 2D 3D जो है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, टॉर्शनल वाइब्रेशन, 3D स्ट्रक्चर्स, 2D स्ट्रक्चर्स, ये सारे आप कर लेंगे। लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस कोर्स की पता नहीं लगेगी तो आई थिंक तब तक ये कोर्स जो यूज़लेस है। मैं आते साथ जो है वो आपको वाइब्रेशंस की डेफिनेशन और गवर्निंग इक्वेशंस ड्राइव करवाना स्टार्ट करवा दूँ, फ्री वाइब्रेशन डैम्पिंग, ये वो डेफिनेशन बता दूँ। लेकिन जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताऊँगा तो तब तक ये कोर्स यूज़लेस है। नेक्स्ट इज़ द बेस एक्साइटेशन और सपोर्ट मोशन। सो ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जिससे आप अनअवेयर हैं। बेस एक्साइटेशन होती है अर्थक्वेक के केस में, आपकी बेस जो है वो वाइब्रेट करती है, और अगर आप 3 या 3rd या 4th फ्लोर पे हैं तो आप सबसे पहले नीचे आते हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर वाले आराम से नीचे आते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कम वाइब्रेशन होती है और 4th फ्लोर पे ज़्यादा होती है। और ये कैसे होती है, क्यों होती है, क्या फिनोमेना है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आप सारे इस कोर्स में देखेंगे। और किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, आइसोलेशन कैसे करते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, डैम्पर का डिज़ाइन इसके लिए कैसे करते हैं, ये भी आप देखेंगे। इसके अलावा मॉडल एनालिसिस आप लोग परफॉर्म करेंगे। मॉडल एनालिसिस पर्टिकुलर जो सिस्टम की क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज होती हैं या नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती हैं या हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज होती हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ पॉइंट वेयर इट कैन वाइब्रेट एट अ मैक्सिमम लिमिट। फाइन। तो जब भी हम कोई सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है, और फिर हम उसकी रनिंग मेथोडोलॉजी डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ये है, और इसकी जो हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक्स आ रहा मल्टीपल्स ऑफ अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसकी रनिंग स्पीड है 1400 RPM। ओके, अगर एक मशीन है, एक आपके पास जो मोटर है इंडक्शन मोटर, उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो 1400 RPM है, और वो एक कंप्रेसर को रन कर रही है, उसकी जो आगे RPM आ रहे हैं वो 50 RPM आ रहे हैं। तो 1400 RPM मोटर के RPM हैं और 50 RPM किसके हैं, कंप्रेसर के। काइंडली आप में से कोई मुझे कन्वर्ट करके बताए RPM को फ्रिक्वेंसी में, कि मोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी और कंप्रेसर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट। जी, वेरी गुड। हाँ जी, 1400 डिवाइड बाई 60 करें, क्या आंसर आता है आपके पास?
जी क्या आंसर आ रहा है? डिवाइड कर दें, 1400 डिवाइड बाई 60 कर दें। $23.33। वेरी गुड। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर मैं इसका हार्मोनिक निकालूं तो मुझे मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा तो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो सेकंड हार्मोनिक होगा, एंड सो ऑन। सो ये सब ये इसके मोड्स होते हैं और नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होते हैं। इनको हम कैलकुलेट करते हैं डिज़ाइन से पहले, और फिर हम इसकी लिमिटेशन मशीन की डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक टर्बाइन है जो 14,000 आरपीएम पे मूव कर रही है, तो हम उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसीज और उसके हार्मोनिक्स और उसके जो मोड्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, और हम फिर मेंशन कर देते हैं कि इसको इतने आरपीएम पे आपने कभी भी रन नहीं करना। अगर आप रन करेंगे तो सडन कोलैप्स हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सो ये जो फील्ड है आपकी वाइब्रेशन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एप्लीकेशन का। वाइब्रेशन ऑब्जर्वर्स आर डिज़ाइन फॉर सस्पेंशन सिस्टम्स, उसमें जो आपको सडन जंप्स लगते हैं उनको ये ऑब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। अर्थक्वेक के केस में भी ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा पावर प्लांट्स में पाइपलाइंस के ऊपर हम इनको इंस्टॉल करते हैं, जो उनकी सडन वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और डेसिपेट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट कपलिंग हम लोग नहीं करेंगे, हॉल्जर मेथड हम करेंगे, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। कंडीशन मॉनिटरिंग हम आपको एंड पे करवाएंगे, मशीन फॉल्ट डायग्नोसिस कैसे करते हैं। मेरा कंडीशन मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा जो इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स में बोर नहीं होने दूंगा। मैं थ्योरी या एग्ज़ाम्स पे बिलीव नहीं करता, आई बिलीव ऑन आ प्रैक्टिकल वर्क। सो अगर मेरा कोई स्टूडेंट है जो मुझे यस सर। अगर आप में से अगर कोई जो है वो इस कोर्स की अगर थ्योरी को अंडरस्टैंड करे, ए ग्रेड आप ले लें, और अगर आप ले लें ए ग्रेड, लेकिन अगर आप इसकी थ्योरी के साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी अगर आप अंडरस्टैंड करें, तो आप ही लोगों ने कल पावर प्लांट्स पे भी जाना है, आप ही लोगों ने जो है वो सडन हायर क्वालिफिकेशंस के लिए आगे जाना है। सो आई थिंक सो कि आज जो लोग हम जर्मनी या चाइना से मंगवाते हैं अपने प्लांट एनालिसिस के लिए, तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग अवेलेबल हो सकते हैं जो कैट 2, 3, 4 के कोर्सेज़ परफॉर्म करके यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे सर्व करें। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कोर्स के स्टार्ट में ही, कि अर्निंग ही सब कुछ नहीं होता। आप में से कुछ लोग समझते होंगे कि मैकेनिकल आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी विल गो अब्रॉड एंड वहाँ पे हम जो है अर्निंग करेंगे, ये होगा मल्टीपल टाइम जो है वो हमारी अर्निंग होगी। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल मैं समझता हूँ कि जो आपका अपने कंट्री को तो आपने जो देना है तो वो वही देना है जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। अगर यहाँ से मैं आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो कुछ ऐसी करूँगा कि कल आप वहाँ प्लांट पे जाके न्यू इनोवेशंस या करंट इनोवेशन जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लें, आई थिंक कि जो इस प्लांट का जो CLO था वो आपने अचीव कर लिया है। लेकिन अगर इस कोर्स के बाद आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों और अगर आपको कोई के कि वाइब्रेशन क्या होती है, या स्ट्रीम टर्बाइन क्या होती है, या उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, या इसको रन कैसे करते हैं, या जो भी इसको डिज़ाइन करके दिखाओ, इसकी शॉर्ट को रन करके दिखाओ, अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता, तो आई बिलीव द मेन CLOPL ऑफ दिस कोर्स इज़ नॉट अचीव्ड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज़ लेट मी नो। सर जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गए, जहाज हो गया, गाड़ियाँ हो गई, इनमें जो वाइब्रेशंस पाई जाती हैं सर, इनके डिफरेंट नाम होते हैं या कोई सिर्फ एक ही नाम है वाइब्रेशन? नो, हर वाइब्रेशन की एक नेचर है, उसका एक वाइब्रेटिंग फिनोमेना है। अब जो हीट एक्सचेंजर्स के केस में जो ट्यूब्स होती हैं आपकी, या कंडेंसर्स या बॉयलर्स के केस में जो ट्यूब्स वाइब्रेट कर रही होती हैं, इस पूरी फील्ड को हम कहते हैं फ्लो इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, आप लोगों ने थर्मल में स्टडी किया होगा, आप लोगों के पास टर्बुलेंट फ्लो होता है, लैमिनर फ्लो होता है, और इसके अलावा जो है अनस्टेडी फ्लो होता है। तो इन फ्लोज पे ये डिपेंड कर रही होती हैं। दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, यू आर जस्ट स्टडिंग इट्स बेसिक कोर्स, एलिमेंट्री जो पार्ट है उसका आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग कंडीशन मॉनिटरिंग को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, मेरे पास इसके इंडस्ट्रियल केसेस अवेलेबल हैं, आई हैव इंडस्ट्रियल बुक्स अवेलेबल एज वेल, इंडस्ट्रियल केसेस अवेलेबल जो हुए हैं। इट वाज अबाउट 1.5 ईयर अगो आई वाज इन सितारा केमिकल्स, और वहाँ पे जो है 3rd फ्लोर पे एक गैस टर्बाइन का एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस तो बहुत से किए हैं, लेकिन वो एनालिसिस कभी नहीं भूलेगा। HMC में जो है वो यहाँ पे HMC से आगे आता है फारूकिया में भी जो पावर प्लांट है आपका, सीमेंट पावर प्लांट, वहाँ पे भी एनालिसिस किए थे। लेकिन वहाँ पे जो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था
इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड आई बिलीव कि अगर मैं थ्योरेटिकल इम्प्रेशन के साथ आज भी मुझे वो लोग जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ से वो चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ जो एक थ्योरेटिकल टीचर या जिन्होंने जस्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपसे एक बात करने वाला था, वो केस की बात करने लगा हूँ, सितारा केमिकल की। वहाँ पे स्ट्रीम टर्बाइन की हम लोगों ने वाइब्रेशन को कैप्चर करना था। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? यस सर, हो रही है। हो रही है सर। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा, इसमें से फाइनल में कुछ भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कोर्स। ओके सर। सो दिस इज़ द वाइब्रेशन एनालाइज़र CSI 2130। मैंने CSI 2140 भी यूज़ किया हुआ है और इसकी लोअर कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। इसमें आप किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसका वाइब्रेशन पैटर्न है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फॉल्ट डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है करंट वो 8 मिलियन रुपीज़ है और इसको जो है बाय हैंड मैंने जो है वो यूज़ किया था। अब भी ये पूरे के पूरे कैटलॉग्स हमने जो उस वक्त वो बनाए हुए थे जो हम यूज़ करते थे, इसको प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से करते हैं। एंड्रॉयड, आप लोगों ने एंड्रॉयड सेट यूज़ किए हुए हैं, मैं हर चीज़ तो आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या होता है। सर इसका नेम दोबारा बताइएगा। वाइब्रेशन एनालाइज़र नेम है इसका, CSI 2130। इसके मॉडल्स में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ। 213040 में ये फ़र्क है कि उसमें मॉडल एनालिसिस ऐड कर दिया है, बम टेस्ट होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब मॉडल एनालिसिस क्या होता है, बम टेस्ट क्या होता है, अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी इस बात से ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो सकता है ग्रुप भी लीव कर दिया हो, तो ये हम किधर आ गए हैं। ये जस्ट मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। सर कोई वीडियो है इससे रिलेटेड? ये वीडियोस काफ़ी अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये चीज़ नोट करें। ये आप ऐसे समझिए आपके पास एक मोटर है, ये मोटर है आपके पास, और मोटर के अलावा ये जो है आपके पास कपलिंग है, ये आपके पास फ़ैन है। अब मोटर ने जो है वो फ़ैन के साथ कपल होना है, इन्होंने मूव करना है, तो ये ऐसे समझिए कपल्ड हुए हैं। जब भी हम प्लांट पे जाते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उस सेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्रेसर रन हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या लगा हुआ है, मोटर के साथ कपलिंग होगी, शाफ्ट होगी, गियर बॉक्सेस होंगे, पुलीज होंगी, फिर एंड पे जो आपका रनिंग कंपोनेंट है वो होगा। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ये आपने देख लिया, ये सारा का सारा जो है ना ये वाला ये हम राइट डाउन कर लेते हैं, ये हम अपना एक प्री प्लान बना लेते हैं कि अब क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मोटर है तो मोटर के हम 3 डायमेंशन में वाइब्रेशन को मेजर करेंगे। फर्स्ट डायरेक्शन इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन इज़ रेडियल डायरेक्शन एंड अदर डायरेक्शन इज़ एक्सियल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेडियल, या एक्सियल भी आप इसे कहते हैं। वर्टिकल में एक्सियल और रेडियल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे हम जो है वो पैटर्न बना लेते हैं। अब देख रहे हैं ये M1H लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, मोटर फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये मोटर का क्या है, एक्सियल कंपोनेंट है, और ये आउटबोर्ड पे उसका जो है वहाँ पे हमने वाइब्रेशन को लिया हुआ है। इसी तरह हम ये वाला जो मोटर का होता है इसको हम कहते हैं ड्राइव एंड, इस एंड को हम कहते हैं नॉन ड्राइव एंड। इसी तरह ये वाला जो फ़ैन का एंड होता है इसको हम कहते हैं ड्राइव एंड, इसको हम कहते हैं नॉन ड्राइव एंड। सो इसी तरह हम फ़ैन, मोटर, उसके हिसाब से हमने सिग्नेचर दे दिए, और ये हम एक कोर्स लेआउट प्लान बना के अपनी मशीन में सेव करवाते हैं अपने CSI 2130 या 40 में। उसकी रेजोल्यूशन को सेट करते हैं डिफरेंट, ये सेटिंग छोड़ दें आप, अब इसको छोड़ दें फ़िलहाल, इसमें हम सेव करवा लेते हैं और इस चीज़ को हम लेके जाते हैं। ये देख रहे हैं ये चीज़, ये लैपटॉप के साथ कन्वर्ट हुई है, तो जब डाटा हम इसमें सेव करवा के लाते हैं तो फिर लैपटॉप पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन अब इससे पहले एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कोर्स से आउटसाइड भी बताऊंगा जो इस कोर्स में आती हैं, लेकिन अभी जस्ट जो है वो आप मेरी बात को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये लोग आप देख रहे हैं, ये जो आपको जो नज़र आ रहा है पंप, तो इसमें जो है वो बता रहा है आपको मिसअलाइनमेंट के फॉल्ट भी हैं, अनबैलेंस के भी हैं, लूजनेस के भी हैं, कैविटेशन के भी, बेरिंग के भी, ये डिफरेंट फॉल्ट्स हो सकते हैं इसमें। लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच फॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन दिस केस। तो उसके लिए हम मशीन वाइब्रेशन को कलेक्ट करके लाते हैं वहाँ से। तो जब मैं अपने दौर में सितारा केमिकल में गया तो मेरे साथ ये हुआ कि ये मशीन थी, ऐसे समझिए आपके पास स्टीम टरबाइन थी, ये स्टीम टरबाइन थी। यहाँ पे उसका जो है वो जैसे लेथ मशीन आपने देखी है, लेथ मशीन का जो चक होता है वो आप लोगों ने देखा हुआ है, हेड का एक चक होता है, उस चक के पीछे ना एक शाफ्ट होती है एक दरमियान में। वो जो शाफ्ट है ना वो मूव करती है, वो रोटेबल होती है। हेड तो स्टैटिक होता है और चक भी रोटेबल होता है। तो सेंसर को हम वहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे बेयरिंग की लोकेशन होती है। बेयरिंग ज़्यादातर जो है वो शाफ्ट की सपोर्टिंग प्लेस पे होता है। अब ये मोटर है ना आपकी, तो मोटर के अंदर जो रोटर है वो यहाँ पे सपोर्ट किया होगा इन्होंने और यहाँ पे किया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइब्रेशन को मेयर करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा सेंसर को, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे लगा दूंगा, एक्सियली यहाँ पे लगा दूंगा। तो तीनों डायरेक्शन में मैं वाइब्रेशन को मेयर करूँगा। बाई चांस ये हुआ कि उसमें आरपीएम इतने ज़्यादा थे कि जो सेंसर होता है ना एक्सेलेरोमीटर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको हमने प्लेस करना था बेयरिंग के ऊपर। एक ही बंदा वाइब्रेशन को ले रहा होता है उस वक्त, और साथ में एक एडवाइज़र होता है। तो मैंने जो है उसको वो बेयरिंग के ऊपर मैंने प्लेस करना था, और उसके आगे मैग्नेट लगे होते हैं। और बाई चांस ये हुआ कि मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया शाफ्ट को, और जो मेरा मैग्नेट है वो क्योंकि वो ये अगर आप गौर से देखें यहाँ पे आप इन्होंने पिक शो होने की, मैं आपको फिर भी जो है वो दिखाता हूँ। yes this one। सो प्लीज़ लुक हेयर, आप जाते हैं, आपके हैंड में ये एनालाइज़र है और ये इसके साथ जो सेंसर है वो कनेक्ट हुआ है। ये सेंसर होता है आपका सेरोमीटर, और ये वायर होती है दरमियान में, फाइन। तो इसको आप प्लेस करते हैं मशीन के ऊपर या बेयरिंग की पोजीशन पे। तो मेरे से बाई चांस ये हुआ कि मैंने उसको शाफ्ट के बेयरिंग पे प्लेस करना था, शाफ्ट ने अटैक किया तो मैंने शाफ्ट के ऊपर उसको लगा दिया। वो 13,000 14,000 आरपीएम पे टर्बाइंस चल रही होती हैं, उसमें तो चांस ही नहीं होता आपके पास कि आप कोई गलती करें। इंडस्ट्रियल केसेस हज़ारों ऐसे हैं जिसमें लोग जाते हैं, एक्सपर्ट जाते हैं, एंड बाय बैड एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत से हैज़र्ड्स हो जाते हैं। किसी का हैंड का इशू बन जाता है, किसी की पूरी आर्म का इशू बन जाता है, कोई पूरा का पूरा इशू बन जाता है। तो उसमें जो है ना वो मतलब कि लाइफ चांस आता है आपके पास, तो ये रिस्क होता है। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों में से कुछ लोग जब इंडस्ट्रियल लेवल पे जाएंगे और लाजमन जाएंगे, तो उस इन केसेस में आप लोगों ने जो है ना सेफ्टी जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, उनको कभी आप लोगों ने जो है ना वो लीव नहीं करना, क्योंकि ये वो चीज़ लाइफ जो होती है इंसान की वो एक बार ही उसके पास आती है। जो आपके पास ये चीज़ें हैं, ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। जॉब आज नहीं है तो कल हो जाएगी। या आप अगर अब ये देखें, ये शाफ्ट की रोटेशन हो रही है, उसके मुताबिक ये वाइब्रेशन को मेजर करके दिखा रहा है। ये फ़ैन की जो आरपीएम है और ये गियर्स के केस में सिग्नल कैसा आ रहा है। अब मैं वापस आता हूँ, आप में से कोई ऐसा जेंटलमैन है जो बता सकता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है वाइब्रेशन में, इन तीनों केसेस में? सर फ्रीक्वेंसी का जी, वेरी गुड। नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, इस केस में नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम होंगे, फाइन। आगे चलें, नंबर ऑफ़ साइकिल्स ज़्यादा हैं क्योंकि 4 इसके बिट्स हैं। आगे चलें, ह्यूज नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ मैं आपको सिग्नल का जो प्रैक्टिकल जो विजिबिलिटी होती है वो दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको वो दिखाई है, ठीक है। अब क्या होगा जब आपके पास एक्चुअल मशीन होती है, उसमें आपके पास शाफ्ट भी होती है, फ़ैन भी होता है, कंप्रेसर भी होता है, आपके पास गियर बॉक्स भी होता है, आपके पास नंबर ऑफ़ मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये सारे के सारे सिग्नल आ रहे होंगे एनालाइज़र में। तो
तो सिग्नल का बिहेवियर इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है अंडरस्टैंड करना, कि एक वाइब्रेशन एनालिस्ट जो प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है और जो प्रॉपर जिसने कोर्सेज और ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किस में फॉल्ट आ रहा है। आर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी? यस सर। यस सर। जी, इस तरह के सिग्नल्स आ रहे होते हैं आपके पास। एनी वाइब्रेशन का जो सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपको बताता है कि कितना, एम्पलीट्यूड क्या बताता है आपको? एम्पलीट्यूड आपको ये बताता है कि हाउ मच सिवियर यू आर, योर मशीन इज़ हाउ मच क्रिटिकल। और फ्रिक्वेंसी क्या बताती है? हाउ ऑफन और वेयर। इसमें वो बताती है कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, फ्रिक्वेंसी बताती है। एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना फॉल्ट आ रहा है, और फेस ये बताता है कि ये कब फॉल्ट आ रहा है, ये लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, खैर ये बहुत आगे की बातें हैं, अभी मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, ये आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है, इसको आप लीव कर दें। तो जितनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी उस क्रेस्ट या ट्रफ की, तो उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, ये अजान हो रही है, 2 मिनट ठहर जाएँ फिर ऑनलाइन आता हूँ मैं। आर यू पीपल गेटिंग मी? आपकी जो क्लास है Yes, वो sir. ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, कोर्स आउटलाइन ये आपको स्लाइड्स में दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा। और ये थॉमसन की बुक है, उसको हम फॉलो करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। ये आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी है ये आप खुद देख लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशंस पे आते हैं डायरेक्ट। वाइब्रेशन इज़ अ फिनोमेना इन विच ऑसिलेशंस अकर अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइन, so you can see here, this is your mass spring system. नहीं, उनका नहीं है। ये आपके पास जो है ना, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये वाला, ये मैस है और इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये एक अजम्पशन है मॉडल की, ये हमने एज्यूम किया है। सपोज करें कि कोई भी बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, तो उसका जो मैस है वो m है, जो ये ब्लॉक का मैस आपको नज़र आ रहा है, और जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है तो हमने उसके दरमियान स्प्रिंग अटैच कर दिया है। तो अब हम इसके फीचर्स को स्टडी करेंगे कि किस उनकी जो ऑसिलेशंस हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें जो सिग्नल रिकॉर्डिंग है वो कैसी हो रही होगी, और ये इसी तरह ये इसमें ये देखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन where restoring force is directly proportional to displacement and inversely proportional to जो आपकी फोर्स होती है F इक्वल टू के एक्स का फार्मूला भूल गए आप लोग, रिस्टोरिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स, स्टिफनेस फोर्स, F इक्वल टू के एक्स फार्मूला होता है, के स्टैंड फॉर स्टिफनेस एंड एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज, इफ इट इज रिस्टोरिंग फोर्स देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस आ जाएगा जी, और उसका जो रिलेशन है डायरेक्शन का वो इन्वर्स होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स लग रही होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ। फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और रिस्टोरिंग फोर्स टेंड्स टू रिस्टोर द सिस्टम टू इक्विलिब्रियम, और जो एनर्जी डेसिपेट करता है वो डैम्पर के थ्रू वो डेसिपेट करता रहता है। सो दिस इज योर मैस स्प्रिंग सिस्टम, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज योर सिंपल पेंडुलम। अब दोनों सिस्टम्स की अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे आप डिटरमिन करेंगे, इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर मैं इस मैस के साथ एक और स्प्रिंग लगा दूँ, फिर
अगेन आगे मैच लगा दूँ, अगेन स्प्रिंग, अगेन मैच, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम के साथ इस बॉब के एंड पे एक और स्ट्रिंग लगा के एक और बॉब लगा दूँ और उसके एंड पे एक और स्ट्रिंग लगा के एक और बॉब लगा दूँ, तो किस तरह से सिस्टम आपका वाइब्रेट करेगा मल्टीपल लिंक्स के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। फाइन। सो हेयर यू कैन सी जब मैच आपका मेन पोजीशन पे होता है और जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं और फर्दर एक्सटेंशन होती है जब वो रिस्टोरिंग फोर्स में आ रहा होता है, ये सब उसमें देख लें। इनिशियली आपका क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो की जो पोजीशन है वो आपके पास यहाँ पे है। बस कीप इन योर माइंड दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दिस इज़ वेलोसिटी ग्राफ एंड दिस इज़ एक्सेलरेशन ग्राफ। Vibration is mostly measured in terms of displacement, velocity and acceleration units. Why? I will explain it in coming lectures कि क्यों हम displacement, velocity, acceleration को इसमें लेके आते हैं और किस में कब मेजर करते हैं। displacement की अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, velocity की अपनी है, acceleration की अपनी है। बस कीप इन योर माइंड जो लो फ्रिक्वेंसी फॉल्ट होते हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट में भी मेजर कर लेते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्ट होते हैं उनको हम एक्सेलरेशन में करते हैं, और velocity इज़ दी यूनिवर्सली यूज्ड एवरीवेयर। सो वेयर आप लोगों को मैथमेटिकल फार्मूला पता होगा, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। पता है आप लोगों को, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सो आप देख रहे हैं इसमें ये अगर ज़ीरो पोजीशन है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या शो करवाई है, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ इन्वर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट है तो ज़ीरो, इन्वर्स है तो कोई बात नहीं। अब इसका अगर वन साइकिल यूँ बन रहा है तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसका वन साइकिल इन्वर्स हो जाएगा। फाइन, रिटार्डेशन होगी ना। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट ज़ीरो पे होगा और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो इसकी मूवमेंट जो है ना, इस पूरे मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है, इसके जो फेसेस हैं उसको हमने इससे इंटरलिंक कर दिया है। इसकी जो फर्दर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर प्रोवाइड करूँगा रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में। ये इसके सिंबल्स हैं और यूनिट्स हैं, ये मैं नहीं समझता आपको, मैं स्लाइड पे मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, खुद इसको देख लेना। मैकेनिकल वाइब्रेशन की जो क्लासिफिकेशन है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, इस बेस पे भी आपको वाइब्रेशन को क्लासीफाई करते हैं। इन एडिशन वी हैव अ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स अवेलेबल। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन वी विल सॉल्व फॉर गो फॉर अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। So if you have a single degree of freedom system, you will have a one natural frequency, one modal shape and one resonant frequency as well. And if you have a multiple degree of freedom, and then you have a multiple degree of natural frequencies, multiple degree of modal shapes and multiple resonant shapes as well. So what is resonant frequency? It is a point where your structure will start to vibrate at highest extent. इसमें स्ट्रक्चर आपका एब्रेट हायर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पार्टिकुलर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉक की, जब उस ट्यूनिंग फॉक को उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप मूव करते हैं तो गिलास के अंदर आप उसको प्लेस करें तो उसमें मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई देती है, तो वो रेजोनेंट उसकी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो मैक्सिमम साउंड प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको आप वाइब्रेट करें कम फोर्स से, फिर और ज़्यादा फोर्स से, फिर और ज़्यादा फोर्स से, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे स्ट्रिंग में से आपको मैक्सिमम वॉइस आ रही होगी, तो वो जो पॉइंट होता है वहाँ पे आपको जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के मोड्स होते हैं वो मेरे होते हैं। इसी तरह जो इंजन्स को लैब्स करते हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे करते हैं। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव टू अवॉइड दिस फ्रीक्वेंसी while designing an instrument or a machine element. So damping is of three types: under damp, over damp and critical damp. Damping depends upon the application of energy dissipation. कहीं पे आपको कम एनर्जी डिसिपेट करना पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे मीडियम लेवल में. For example, if you are driving a car and you need to come to rest after a few seconds, 3 or 4 seconds, तो आप वहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग कर होते हैं. अंडर डैम्पिंग आप कहाँ पे कर होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोर है, जो आपने ऑटोमेटिक डोर्स देखे होंगे जो अप डाउन मूव करते हैं, तो उनमें वो अंडर डैम्प होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन अगेन एंड अगेन होती है, इसमें ऑसिलेशंस होती हैं. अंडर डैम्प मोशन विल हैव ऑसिलेशंस, वर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम विल हैव नो ऑसिलेशंस एंड इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. अंडर डैम्प सिस्टम जो होता है ये जो होता है ये सबसे एंड पे रेस्ट में आएगा. इट विल टेक अ लार्जेस्ट टाइम टू कम टू रेस्ट. उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं और ऑसिलेशंस होते हैं. क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है, सिस्टम जल्दी रेस्ट में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अंडर डैम्प, और इसमें ऑसिलेशंस नहीं होती.
ओवर टाइम में क्या होता है, सिस्टम एब्रप्ट रेस्ट में आ जाता है एज सुन एज पॉसिबल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आपके पास मशीन गन बैरल होती है, गन बैरल को आप लॉक करते हैं तो सडन रेस्ट में आ जाती है बैरल, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि वो अप डाउन मूव करती रहे, तो इतने में फायर कर दिया अगला बंदा। सो ये ओवर टाइम का केस है। अंडर टाइम का केस है आपके पास, अंडर टाइम का जो बेस्ट केस मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी। इसके अलावा जो अर्थक्वेक में एग्जांपल्स हैं, अर्थक्वेक बिल्डिंग वाइब्रेट करती है, वो भी अंडर टाइम होती है। इसके अलावा आप कभी ब्रिजेस के ऊपर खड़े हों, जब उसमें से ये टेक्सला ब्रिज है आपके पास, फ्लाईओवर जो बने होते हैं, इसके ऊपर खड़े हो जाएं आप लोग, तो ये भी जब उनमें से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो ये कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनको हम खुद अंडर डैम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, ये आपको कमिंग लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ अबाउट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम। इंशाल्लाह हम इसको कमिंग लेक्चर में ये सारा चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में। और कल आपकी जो सुबह क्लास है, कंबाइन क्लास है ऑल सेक्शंस की, तो हम इंशाल्लाह कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ प्लीज़। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चीज़ के लिए होती है? ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को छोड़ दें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली डिफाइन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम एंड इट आल्सो डिफाइन नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ सिस्टम। इट हैज़ टू डिटरमिन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद इन द सिस्टम। आपके पास जो मैटलैब और एनसीएस हैं, इन पे भी आप जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को डिटरमिन कर सकते हैं। जो सेक्शन सी को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनको मैंने आज काफ़ी डिटेल में ब्रीफ किया है कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हवाले से जो है वो एप्लीकेबल हैं। ऐसी क्या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, मतलब क्या यूज़ होता है इसमें? ओके बताता हूँ मैं। आप सुने। आप फॉर एग्जांपल आपके पास एरोप्लेन का एक विंग है, ये एक मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। उसकी रीज़न क्या है कि एरोप्लेन विंग जो है वो कैंटिलीवर बीम है आपका, और उसके डिफरेंट नोड्स होते हैं। तो आप जब बम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके विंग के ऊपर उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को फाइंड करने के लिए, तो उसमें मल्टीपल हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। तो जब उनका एनालिसिस परफॉर्म किया गया तो उससे पता चला कि इसमें मल्टीपल नेचुरल फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। सो ये वो डिज़ाइन फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको आप लोग अवॉइड करेंगे उस पर रन करने में। उनमें से कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे जिस पे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है जब भी किसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे सिस्टम रन करेगा। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की जो रनिंग फ्रिक्वेंसी है वो ऐसी हो जाए कि वो उसके विंग की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए, उसका विंग कोलैप्स कर जाएगा। और ये होता है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, और ये होता है। आपका पूरा का पूरा टरबाइन बॉयलर से कोलैप्स कर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको छोड़ दें, एक कॉमन एग्जांपल है आपकी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन जो है वो फ्लाई ओवर कर रहे होते हैं तो आपके जो विंडोज़ होती हैं वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। कभी नोट किया आप लोगों ने? विंडोज़ वाइब्रेट कर रही होती हैं। यस सर। वो वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है? वो वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है? एक्चुअली ये हो रहा है कि जो आपकी विंडो की फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो मटेरियल फ्रिक्वेंसी है, व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ सिस्टम एंड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल जिससे वो बनाया गया है। तो जितना उसका मैस होगा, स्टिफनेस होगा, वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करेगा। और जब वो चीज़ अगली फ्रिक्वेंसी से मैच होगी, फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन गुजर रहा था तो वो किसी हार्मोनिक, पूरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी, कोई हार्मोनिक मैच हो जाएगा या कोई सब हार्मोनिक उससे मैच हो जाएगा। तो जब भी वो मैचअप होता है तो वो क्लोजेस्ट पॉइंट पे आके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर बिल्कुल मैच हो जाए या उसके हार्मोनिक पे भी मैच हो जाए तो वो विंडो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी। अक्सर विंडोज़ टूट भी जाती हैं आपकी। सर वो रेजोनेंस की वजह से नहीं आता? जी रेजोनेंस, मैं रेजोनेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये रेजोनेंस है, यही तो रेजोनेंस है। आई हैव इंडस्ट्रियल केसेस, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। आज तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब आते साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा सकती। आप में से कुछ लोग हैं जिनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आपके पास पूरे सेमेस्टर का लोड है, तो आई हैव टू लुक फॉर द डोमेन ऑफ माई कोर्स। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल रिमेन इन टॉपिक और आपको मैक्सिमम नॉलेज में कन्वे करूँगा। और टिल नाउ आज जो हमने स्टडी किया है, आपका एग्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर ये रिकॉर्डेड है लेक्चर? जी इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड किया है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो मैं अपलोड कर दूँगा। सर जो भी हुई क्वालिटी आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज़ कोई क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिगार्डिंग योर लेक्चर्स, आपका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे
और जो कोर्स प्लान है, आउटलाइन है, वो भी उसमें अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा जो नोट्स होंगे वो भी वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसका लिंक वो अपलोड कर देंगे वहाँ पे यूट्यूब से, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अटेंडेंस का जो लिंक है वो जो है वो मैं गूगल फॉर्म जो है वो जनरेट करके उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इस पे व्हाट्सएप पे भी और गूगल क्लासरूम पे भी। आज रात 9 बजे तक आप उस पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक बच्चा ना क्लास ले रहा है, उमैर सुहेल, जी तो अगर वो सुन रहा तो उसका ना वॉलेट मिल गया। जी जी, आप इनको कन्वे कर दें, सीआर के थ्रू जो है वो कन्वे कर तो दें। असल में सर मेरे पास इनका कोई वो नहीं है कांटेक्ट नंबर, तो अगर वो सुन रहा है तो ठीक है। सीआर काइंडली उमैर जो है अगर आपके सेक्शन में अवेलेबल है सेक्शन डी में, इनसे कॉन्टैक्ट करें और इनका जो कॉन्टैक्ट है ये मोहम्मद अहमद से करवाएं। अहमद आपका रोल नंबर क्या है? 18ME025। 18ME025 जो रोल नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट करवा दें आप, और इनका जो वॉलेट था वो मिल गया इनको। सर ये अटेंडेंस का पूछना था, इसकी क्या टाइमिंग होगी? आपकी जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन हुआ करेगी फॉर एवर लेक्चर के दौरान, लेकिन आज जो है वो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, गूगल फॉर्म पे होगी। जैसे आप लोग नॉर्मल अटेंडेंस मार्क्स कर, मेरे लेक्चर में अटेंडेंस का इशू नहीं है, आप लोग बेशक मेरे लेक्चर में ना आएँ, लेकिन मैं आपको एक टाइम लिमिटेशन के लिए टाइम लिमिटेशन देखें, क्लास में आप एंड पे भी आ जाते हैं तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, लेकिन वो आपको नुकसान होगा, आप जो है वो स्टार्ट में आएँ। ओके सर। सर फ्लैटरिंग का आपने बताया था, वो मिंग के साथ एरोप्लेन के मिंग के साथ नहीं। जी जी बता दें जी जी, फ्लटरिंग के बारे में क्या बताऊँ आपको? नहीं सर, फ्लैटरिंग का तो आपने बताया था ना विंग से लिंक्ड है, गैलपिंग का बता दें। गैलपिंग ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं आपकी, ये जो अल्फा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन होती है वायर्स की, जो आपके पास जो पावर सप्लाई आपके होम्स पे आ रही है, तो आपने देखा होगा ये पावर जनरेटर से लेके आपके होम तक आ रही है, तो दरमियान में नंबर ऑफ़ जो इसके सब सेक्शंस होंगे और फिर ट्रांसफार्मर आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचते हुए कभी आपने ये माउंटेंस पे ट्रैवल किया हो तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है वो टावर्स लगे होते हैं, वहाँ पे अल्फा और स्टार डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है ट्रांसमिशन लाइंस की। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन किया जाता है कि कितने डिस्टेंस पे हमने जो है वो टावर को प्लेस करना है, तो ये सारा का सारा जो है ना ये आपका गैलपिंग में आता है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है, स्ट्रक्चर क्या आपका वो एक वायर है, वायर का डाया आपको पता है, आपको उसका स्पैन पता है, तो इससे आप उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके मुताबिक डैम्पर डिज़ाइन करके उस पर लगा देते हैं। ठीक है, सेफ डिज़ाइन के सर लिए ये होता है कि एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, जो एनर्जी विंड एनर्जी जो है जो ऑब्जॉर्व कर रही है ट्रांसमिशन लाइन, वो उससे क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। ठीक। देखिए मेरी बात सुने, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आपको फर्दर मैं इसको एलेबरेट करूँगा। और काइंडली आप मुझे ये बता दें कि कोर्स कंटेंट के हवाले से मुझे आप अपने व्यूज़ बताएं और क्लास के हवाले से व्यूज़ बताएं। आपने और भी सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड की हुई हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी की हुई हैं, तो आई वांट टू हियर फीडबैक फ्रॉम यू पीपल। ऑनलाइन ही अपनी फीडबैक बताते जाएँ और ऑफलाइन होते जाएँ, और ऑनलाइन बेशक नहीं एंड तक, लेकिन फीडबैक अपनी बताते जाएं, और ताकि हम जो इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं हम लेके आएँ। टिल नाउ प्लीज़ अपना नेम बताने की ज़रूरत नहीं है, रोल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, रिकॉर्डेड लेक्चर जो गूगल क्लासरूम में भेजे जाते हैं उनको पढ़ना आसान है, इस तरह पढ़ना थोड़ा मुश्किल है लाइव। सही कह रहे हैं सर। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि किस तरह से आप मतलब मुझे समझाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर जैसे सर हमें वीडियोस आती थी, यानी कि 10 मिनट की वीडियो होगी, 40 मिनट की वीडियो होगी। मैं आपको बात समझ गया, इसको मैं अभी आंसर कर देता हूँ। एडमिन की पॉलिसीज़ के मुताबिक वी हैव टू अपीयर इन एसिंक्रोनस मोड। तो एसिंक्रोनस मोड में ये है कि आप फिजिकली सामने होंगे और हम भी होंगे। अब पहले तो ये होता था कि लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे देते थे, लेकिन अब ये होगा कि लैपटॉप स्क्रीन आपसे शेयर होगी, हम आपके सामने होंगे और आप भी हमारे सामने होंगे। इन एडिशन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर आपको दे देंगे, और इसके अलावा जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का लेक्चर होगा, न्यूमेरिकल मॉडलिंग का जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब का आपसे शेयर करेंगे, लेकिन टीचर खुद आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स आपके पास दोनों ऑप्शन अब अवेलेबल हैं, पहले एक ऑप्शन अवेलेबल था।
सर इसमें मसला ये है कि वीडियो क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती और आवाज भी बीच में आपकी थोड़ी ब्रेक होती है सिग्नल की वजह से। नो इशू, नो रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट होता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा जिनका इंटरनेट का इशू है, मैं परेशान नहीं होना। जी बताते जाएं प्लीज़, आते जाएं। सर ये जो आप कह रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड करनी है अलग से चीज़ें, तो यूट्यूब पे आपने क्या अपलोड करना है और हमें क्लासरूम से कौन सा मिलेगा डेटा? देखिए एक्चुअली ये है कि जब आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे तो वो हाफ आवर 1 आवर के होंगे, तो वो जो अपलोडिंग है वो गूगल क्लासरूम पे तो नहीं हो सकती। आल तो लिंक ही शेयर हो सकता है ना, यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। पहले मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन लैब करवाई है तो उसके जो लेक्चर्स हैं वो उसमें मैं अपलोड करता रहा हूँ। नॉर्मली आप लोगों को ये होता था कि 10 से 15 मिनट्स का रिकॉर्डेड लेक्चर मैं वहाँ पे दे देता था, लेकिन अब ये है कि बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर मैं इसको 10 से 15 मिनट में करवा दूँ न्यूमेरिकल को, तो मैं ये नहीं समझता कि मैं आपको कंप्लीट कन्वे कर रहा हूँ। तो ये सबका अपना एक तरीका है, तो मैं जो है उसको आपको इंशाल्लाह आप एक अच्छे डिज़ाइनर्स होंगे आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स 302। यस, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये हमारे कल ना मोम का सुबह पेपर है, तो हमारी क्लास से कोई 6 से 7 लड़के हैं, वो मोम का कल पेपर देंगे सुबह। नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोम का पेपर दें, जिनका इशू आ रहा है अपने ईमेल मुझे सेंड कर दें, CR के थ्रू एक ईमेल सेंड करवा दें। ठीक है सर। तो अटेंडेंस लग जाएगी ना जिनका मॉम का पेपर है कल? जी लग जाएगी अटेंडेंस। ओके सर। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर नमाज का टाइम है, जा सकते हैं? ठीक है आप जाएं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं काइंडली। कोई फीडबैक देना चाहें या कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज़ हम क्लास को लीव कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है कि मतलब क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइव सेशन है ये, तो उस हिसाब से मतलब आपको पता है कि लाइव फीडबैक भी ज़रूरी होता है मोस्टली, कि हमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, क्वेश्चन आंसर रीजनिंग्स होती हैं, पहले अवेलेबल नहीं थी जी। तो ये अब हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक फिजिकल और डिजिटल क्लासरूम में काफ़ी फ़र्क होता है, डिफरेंस है, इसीलिए इसको लाइव ऑनलाइन करवाया गया कि न्यूमेरिकल भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम इसको ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। जी सर बाकी तो ठीक है। अब आपको पता है कि अभी तो फर्स्ट क्लास है, अब जैसे जैसे चलते जाएंगे उसी के साथ से फिर हम रिव्यूज़ और फीडबैक और अच्छे दे सकते हैं। ओके फाइन। रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि मेरे एंड से रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आ रही है और रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक हो रही है, और 8 MB का कनेक्शन है, तो आई डू नॉट थिंक सो कि कोई इशू होगा इसमें। और आपके एंड पे मैं ये कर सकता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। Okay fine, so your updated lecture will be uploaded on the Google Classroom with lecture 1 and also with the available books and YouTube link where you can find the updated lectures. So thank you very much for your time. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir.